Hi, welcome to the new episode of Sportsy. Sports makes us aspire, inspire, and motivate. Hence, let's aim sports. Today we have with us Neeraj Yadav, a Para-Olympic discus throw athlete who has already qualified for Tokyo 2021. Neeraj is a multi-sport personality who has competed at international level across discus throw, javelin, shot put, as well as tennis. A work colleague at the Indian Spinal Injury Center in Delhi, India, told him about parasports. He first played tennis before switching to athletics. What he says, I like playing tennis, but the coaching is expensive. Then I tried athletics and I enjoyed it as well. He quit the sport after getting married in 2012. However, his wife motivated him to return to the sport. He recently mentioned in one of the interviews, my family was not in the position to support me. I was facing financial crisis. After I married, I decided to quit the sport. The only aim was to find a great job for myself to take care of my family. But my wife kept on convincing me why I needed to go back to the sport and compete. And she was right. My heart was always in sports. My wife is the strongest motivator. Neeraj mentioned one more thing. He used to consider himself very weak. He used to be scared, but sports boosted up his confidence and motivated him. Now, when he comes to the ground, he does not consider himself a person with any impairment. He always feels that he can achieve what he has dreamt of. We have with us Neeraj, who has won gold for India in the men's discus throw F55 event with an effort of 35.49 meters. Please welcome Asian Games javelin throw gold medalist and 2021 Tokyo Paralympic discus throw athlete Neeraj Yadav. Thank you for watching. Thank you for liking and thank you for sharing. But please do subscribe on our channel Sportsy Says and help us spread the word about Sportsy. We go with the same handle Sportsy Says across all the social media platforms. नीरज, आपको मिलके बहुत खुशी हुई एंड सबसे पहले तो ओलंपिक कोटा के लिए बधाई है। थैंक यू सर। तो नीरज, हमने आपकी स्टोरी पढ़ी हुई है, बहुत लोगों को मालूम है। आप मल्टी स्पोर्ट खेल चुके हो। आपने टेनिस से चालू किया, बाद में डिस्कस किया, जैवलिन किया, शॉट पुट किया एंड लेकिन आपका ओलंपिक कोटा इज इन डिस्कस थ्रो। तो क्या आप बोलेंगे कि आपकी आपकी जर्नी कैसी रही आज तक? डिसेबिलिटी आई, वो कहाँ से आई, कैसे आई? आपने what were the things that you actually faced to make you what Neeraj Yadav is today? जी सर। सर जब मैं 7 साल का था तब मेरे को अपना ये न्यूरो की थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। जो स्पाइन से रिलेटेड एक नर्व्स होती है वो ब्रेन से नीचे आती है, तो वो डैमेज हो गई थी। तो मेरे को मतलब ना तो मैं चल पाता था, ना मैं फिर चलना फिरना एकदम बंद हो गया था। मैं प्रॉपरली बेड पे ही रहता था। तो मेरे डैडी भी काफी परेशान हुए और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जगह पे। जैसे जैसे उनको बताया गया कि भाई यहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करवा ले, वहां पे जाके ट्रीटमेंट करवा लो, तो डैडी ने मतलब पूरा पूरा अपना जहां जहां लोगों ने बोला वहां वहां जाके करा। और जो मेरे नाना जी हैं, मेरे नाना जी भी अपना मेडिकल लाइन से ही है, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट करी है। और जैसे मेरे पैरों की मालिश होती थी, दवाइयाँ होती थी, मालिश करना, तो मैं अपने मामा के, जो मेरे नाना जी हैं, उनके वहां पे मैं अपना 3 से 4 साल वहीं पे रहा। तो उन्होंने मेरे ऊपर काफी मेहनत करी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि इस वक्त मैं आपके सामने हूँ। और जैसे कि हम स्कूल टाइम में जाते थे, स्कूल टाइम में काफी मन होता था जैसे स्पोर्ट्स का, तो जो साथ में जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो वो कभी मेरे को ये महसूस नहीं होने देते थे कि भाई आप व्हील चेयर बाउंड हो और मतलब आप हमारे साथ नहीं खेल सकते। तो वो मुझे हर चीज में पार्टिसिपेट करवाते थे, चाहे क्रिकेट हो गया, चाहे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, चाहे हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे XYZ कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो मेरे को अपना अपने साथ रखते थे। तो उन्हीं के, और जो मेरे फादर हो गए, अपने मेरे फ्रेंड्स हो गए, मम्मी हो गई, उनकी ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ। जो बोलते हैं कि प्रॉब्लम होती है, सब जगह पे होती है, अलग लेवल की होती है, लेकिन जो आपका नेटवर्क होता है, जो आपके आजू-बाजू में लोग होते हैं, आई थिंक उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो बोला आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, बिकॉज़ वो उम्र में फ्रेंड्स को भी मैच्योरिटी नहीं होती कि कैसे डील करें, बट ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलना आई थिंक इट्स बहुत बड़ा योगदान है। काफी लोग होते थे सर कि अब जैसे मैं जा रहा हूँ तो वो बेचारे कि
तौर पे देखना कि भाई इसके पैर खराब हैं, तो थोड़ा सा एक सहानुभूति करना। तो वो सहानुभूति बहुत लोग करते थे, बट लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे को हमेशा इस चीज के लिए बोलते थे कि तेरे को सहानुभूति की जरूरत नहीं है, तो जो भी चीज कर सकता है वो खुद से कर सकता है। जो चीज हम वेरी कर गुड, रहे हैं वो चीज तू खुद कर सकता है। वेरी गुड। एंड आई थिंक ये इससे इससे बड़ी प्रोत्साहन क्या चाहिए? आई थिंक आपके दोस्त अगर ऐसे हो, उससे बड़ा प्रोत्साहन क्या चाहिए? सो सो नीरज, फर्स्ट थिंग तो एक तो आपका ओलंपिक कोटा हो गया, आपने इतने सारे मेडल्स इंडिया के लिए अलग अलग कैटेगरी में लेके आए हैं, और जी सर। सबसे बड़ा तो मेरे को मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए, आप जो आपके पीछे तिरंगा दिख रहा जी सर। है। सर सो बस यही, ये ड्रीम है मेरा कि हमेशा अगर मैं कहीं पे भी खेलने जाऊं तो हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है। वेरी गुड, इट्स लाइक इट इज सो गुड टू हियर दैट। एंड ये बहुत अलग अलग फील होता है। जी सर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो पोडियम पे जाना और अपना राष्ट्रगीत सुनना, आई थिंक बिल्कुल। उससे उससे बड़ा ड्रीम तो कुछ होता नहीं है जी एक स्पोर्ट्स एथलीट के लाइफ में। लेकिन आपने जो आपकी जर्नी बोली है बहुत कठिन थी, बहुत सही थी। तो आपको क्या लगता है कि आप जब, और आपने एक दो जगह मैंने पढ़ा भी है आपके बारे में, बोलता आपने बोला है कि मैं खुद को बहुत वीक समझता था, मैं खुद को समझता था कि मेरे आई कांट डू थिंग्स, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बट स्पोर्ट्स ने आपको होप दिया। आप स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आए? सर, मैं अक्षय प्रतिष्ठान एक एनजीओ है, मैं वहां पे वॉलेंटियरी करता था। तो हम्म, वहां पे अपने जो एबल के कोच हैं मिस्टर नरसिंह, वो हमारे वहां पे विजिट करने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को देखा और मुझसे उन्होंने बोला कि भाई आप स्पोर्ट्स क्यों नहीं करते हो। तो मैंने कहा सर स्पोर्ट्स के बारे में मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला हूँ, कभी गुल्ली डंडा खेल लिया, अपना बैडमिंटन खेल लिया, तो ये इस टाइप के गेम खेले हैं। तो सर ने बोला कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम आओ। मैंने कहा सर कहाँ स्पोर्ट्स कर पाऊंगा मैं, मतलब ठीक है अभी जो मैंने स्टडी करी है मैं उस चीज के बारे में। फिर लेकिन उन्होंने मेरे को काफी बार बार बात करी, बार बार मेरा मनोबल बढ़ाया। और जो एनजीओ है उनमें एक मैडम है मधुर भंडारी, उन्होंने भी मेरा मतलब काफी सपोर्ट करा। उन्होंने वो ही मुझे बार बार बोलती थी कि नीरज तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, बट लेकिन जो तुम्हारा ये थोड़ा सा सोचने का तरीका है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, हम्म, ऐसे में मेरे को ये प्रॉब्लम होगी। तो सर सबसे मेन चीज प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं करा था। सबसे बेसिक चीज ये थी, जब भी मैं कहीं जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता था, तो उनका एक सपोर्ट रहता था कि भाई बैक बैक सपोर्ट रहता है। तो वो कहीं पे भी अपना जैसे कि कुछ चढ़ाना हो गया तो वो पुश करके उन्होंने चढ़ा दिया, साथ ले जाना होता था, जैसे थक गया, थकने के बाद वो अपने आप हम मुझे पुश हम्म, करते थे। तो ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि मुझे कुछ करना है तो वो अकेले करना, हम्म, विदाउट एनी बैक सपोर्ट। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं कि टेनिस कैसा होता है व्हीलचेयर पे। मैंने वैसे नॉर्मली देखा था, लिएंडर पेस हो गए, महेश भूपति हो गए, हम्म, अपना नडाल हो गए, इनको देखा कि भाई टेबल में तो टेनिस खेलना बहुत इजी है, वो वॉकिंग है अपना खेल लेते हैं। पर व्हीलचेयर पे होने के बावजूद कैसे मैनेज होता है कि आप रैकेट को भी होल्ड करो और व्हीलचेयर को भी पुश करो। तो वो वहां पे जाके मुझे पता चला कि किस तरीके से अपना इन चीजों को मैनेज करते हैं। उन्होंने बताया कि रैकेट को आप हाफ होल्ड करोगे, आपका थंब जो रहता है वो फ्री रहेगा। फिर वो जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई। मैंने अपना 2 महीने अपना अच्छे से प्रैक्टिस करी। 2 मंथ के बाद अपना हमारा नेशनल था, फर्स्ट हम्म। नेशनल था अपना व्हीलचेयर लॉन टेनिस का, और मैंने फर्स्ट नेशनल में ही गोल्ड मेडल लिया था। एंड वहां से जर्नी जो शुरू हुई गोल्ड मेडल जमा करने की, आई थिंक ऐसे लगता है कि आपको तो, वो बोलते हैं ना कि हॉबी है गोल्ड मेडल जाके जमा करना। मैंने आपका जी प्रोफाइल देखा हुआ है, इतने सारे मेडल्स है एंड इतने सारे एक्कोलेट्स है, बहुत बहुत सही। लेकिन आप टेनिस से एथलेटिक्स में कैसे आए? सर टेनिस मैंने 2012 तक खेला। उसमें क्या था कि कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी, कोई कुछ सपोर्ट नहीं था। टोटली जो मतलब फाइनेंस जो करना होता था वो खुद से ही लगाना पड़ता था। कहीं पे आप ट्रेवल कर रहे हो, अपने रैकेट्स हो गए, बॉल्स हो गए, ये काफी एक्सपेंसिव होती थी। 2012 के बाद मैंने अपना ये सोचा, मैंने कहा ठीक है बहुत खेल लिया मैंने 2005 से 2012 तक, बट लेकिन एक जो फेम होता है, एक अच्छी अचीवमेंट्स होती हैं वो मैंने हासिल करी।
बट लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, कोई एनी स्पॉन्सर नहीं थे कि भाई स्पॉन्सर हैं तो मेरे को मतलब हेल्प करेंगे। तो खुद से ही अपना इंडिविजुअली मैंने सारी चीज करी। फिर मैंने बीच में अपना टेनिस भी खेला, टेबल टेनिस में भी मैं ओके। अपना नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। जी, फिर अपना बीच में फिर मैंने अपना जो स्पाइनल इंजरी सेंटर में मैंने अपना ज्वाइनिंग करी थी 2008 में, तो वहां से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिला। जो हमारे स्पाइनल इंजरी सेंटर के चेयरपर्सन है मेजर आलूवालिया, उन्होंने काफी सपोर्ट करा, कह रहा ठीक है नीरज तुम करो, हम सपोर्ट करते हैं आपको। फिर वहां से भी सर ये हुआ कि टेबल टेनिस में भी मन नहीं लगा, तो हमारी ये जो दीपा मैडम है, उन्होंने एक बार मेरे को बताया था कि ये एथलेटिक्स का है, तो नीरज तुम एथलेटिक्स स्टार्ट करो, तुम्हारा अच्छा बिल्ड है, अच्छी पावर है। तो तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, करूंगा करूंगा। वो करते 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 2015 आ गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मुझे अब न्यू स्टार्ट करना चाहिए, एक नया गेम। तो 2015 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एथलेटिक्स की। उसमें भी सर मैंने मतलब एक एक डेढ़ महीना प्रैक्टिस करी, दिल्ली स्टेट हुआ, दिल्ली स्टेट में 3 गोल्ड मेडल लिए। फिर देन फर्स्ट नेशनल था हमारा गाजियाबाद का। तो मैं वहां पे ये सोच के गया था पता नहीं मेरा कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे तो सर जो मेरी एज थी वो भी कम थी, तो और थोड़ा सा फिजिक्स भी, जो मेरा बॉडी बिल्ड था वो भी थोड़ा कमजोर था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फर्स्ट है अपना, ट्राई करते हैं, देखते हैं जो बेस्ट अपना प्लेयर होंगे उनसे बातचीत होगी, उनको देखने के बाद कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं काफी नर्वस था फर्स्ट नेशनल में, क्योंकि सुनने में सुना था कि भाई एथलेटिक्स में काफी बड़े बड़े प्लेयर हैं, अपना जो अपना एशियन मेडलिस्ट हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, तो उनको बीट करना एक तरीके से अपने अंदर ही एक अचीवमेंट्स थी। तो वहां पे भी गया, वहां पे जाने के बाद अपना फर्स्ट मेरा अपना नेशनल था, तो उसमें भी जेवलिन में गोल्ड मेडल और शॉर्ट पुट में ब्राउन्स मेडल। वेरी फिर गुड। धीरे आई धीरे थिंक धीरे धीरे सर ये जर्नी चलती रही। तो जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे मेडल टैली अपना ब्राउन से गोल्ड होती गई, फिर गोल्ड गोल्ड, और फिर अपना जो एशियन गेम था, एशियन गेम में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया था मैंने। यस, और वो तो और पूछूंगा ही। अभी ओलंपिक ए क्वालिफाई है डिस्कस थ्रो में। वेरी गुड। आई थिंक इट्स बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना कि आपके लिए सिर्फ पहले ऐसे किया था, अभी ऐसे करता हूँ मैं आपके लिए। अरे सर नहीं, सो नीरज, ये सब आपने किया, लेकिन बोलते हैं ना कि एक एथलीट की लाइफ में या किसी की लाइफ में एक एस्पिरेशन होता है, एक इंस्पिरेशन होता है और एक मोटिवेशन होता है। तो आपके लाइफ का ये 3 चीज कैसे थी? सर मैं जो सबसे पहले एक दीपा मैम है, दीपा मैम ही मेरी इंस्पिरेशन है और एक मोटिवेशन है कि उनको देख के ही जो व्हीलचेयर पे है, एक तो एक उनका इतना एक एबल लाइफ जी रहे थे, एबल लाइफ जीते जीते एकदम सडनली उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद बच्चे भी थे उनके साथ, फैमिली भी थी, तो उनके साथ साथ उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स करी, अपना ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बने। अभी वो हमारे प्रेसिडेंट हैं अपना पैरालंपिक कमेटी के। तो वही अपना मेरे लिए एक सबसे बड़ी अपना मोटिवेशन के लिए। और मैंने कहीं पे सुना है कि आपका एक मोटिवेशन आपके घर पे भी है। हाँ सर, घर पे मेरे मतलब जो वाइफ है उन्होंने काफी इंकरेज करा है मुझे, मतलब इस चीज के लिए कि भाई नीरज नहीं, आप पहले स्पोर्ट्स करते थे, अभी भी स्पोर्ट्स करो। तो उसी की वजह से जो 2015 है उसमें मैंने अपना एथलेटिक्स स्टार्ट करा। तो क्या अब हम लोग बोलते हैं कि जैसे पहले आपने बोला कि फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, देन उसके बाद लाइफ में जो वाइफ आई उन्होंने भी सपोर्ट किया, एंड आपने दैट मेड श्योर दैट कि आप स्पोर्ट्स ना छोड़े। नहीं नहीं बिल्कुल सर, अभी तो मेरा सिर्फ एक ड्रीम है, ओलंपिक मेडल। अब ओलंपिक मेडल एक मेरे पास आ जाएगा, देश का नाम रोशन हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी मेरी ये है कि जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में सफर करा है, ऐसे ही किसी मैं एक बच्चे को लूं अपने साथ और उसको अपना इस लेवल तक लेके जाऊं। वेरी गुड। आई थिंक ऐसी सोच होना ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक आप पक्का करोगे, इतना तो गारंटी है हम लोगों को। एंड सबसे पहले तो आप पहले ओलंपिक में मेडल लेके आइए, हम लोग उसकी वेट कर रहे हैं। तो नीरज,
एक पूछना था कि अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं आप अलग अलग लेवल पे, लाइक आप जैवलिन, डिस्कस, शॉट पुट, ये तीन आपके मेजर स्पोर्ट्स है। उस ओलंपिक डिस्कस के लिए तो आई थिंक आपका आपका पूरा फोकस अभी डिस्कस पे रहेगा, लेकिन ये अलग अलग तीन स्पोर्ट्स में आप प्रैक्टिस कैसे करते हो अलग अलग लेवल पे, और मेंटली प्रिपेयर कैसे करते हो खुद को? सर अलग अलग जो हमारे ये जो इवेंट है, जैसे शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस हो गया, जेवलिन हो गया, तो हमारे कोच हैं नवल सर, तो वो इस तरीके से हमको मॉडिफाई करते हैं, हमको हर चीज तरीके तरीके से बताते हैं कि भाई डिस्कस के लिए हमें ये एक्सरसाइजेस करनी है, शॉर्ट पुट के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है, जेवलिन के लिए हमें इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। तो वो हर एक इवेंट के लिए अलग अलग प्लान रखते हैं वो। ओके, ओके। और मैंने रिसेंटली नवदीप से भी बात की, एंड उसने भी बोला कि नहीं, हम हाइट की वजह से जैवलिन का थ्रो का कैसे प्रॉब्लम आता है एंड ऑल दोस थिंग्स। ही सेड कि नीरज भैया से भी बात करना, आई थिंक उनको भी जब जैवलिन करे तो वो अलग आता है। सो ओलंपिक्स और पैरेलल ओलंपिक्स जो अपने टू कैटेगरीज है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि इक्विपमेंट्स कितने अलग होते हैं आपके लिए टू compete at different level? सर जो इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट सेम ही होते हैं, बस उनके केजी में फर्क पड़ता है। जैसे Okay, अपना ओलंपिक है, तो ओलंपिक में जो एबल की डिस्कस होती है वो 2 केजी की होती है, correct. और जो हमारे पैरा ओलंपिक में होता है उसमें 1 केजी की डिस्कस यूज करते हैं। Okay. और हमारे लिए सर मेन क्या होता है, हम डिस्कस स्टैंडिंग करके तो नहीं फेंक सकते, हमारा Right. एक थ्रोइंग फ्रेम होता है, उसके ऊपर हम बैठते हैं और अपने पैरों को, अपनी कमर को पूरे अच्छे से रैप अप करते हैं, बेल्ट से बांधते हैं, स्ट्रैप से बांधते हैं, और बाकी जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल सेम रहती है जैसे कि एक एबल की रहती है। एबल का क्या रहता है सर कि वो अपना पैरों से पुश मारता है, Right. हमारा टोटली जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारे ये शोल्डरों से ही होता है। Hmm. और जेवलिन में जो एबल का है वो 800 ग्राम की जेवलिन दी जाती है, और जो पैरा ओलंपिक है, पैरा प्लेयर्स हैं, उनके लिए अपना 600 ग्राम की जेवलिन यूज होती है। और शॉर्ट पुट में 4 केजी होता है पैरा के लिए, और एबल के लिए 7.5। ओके, ओके। सो क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में बहुत कैटेगरीज भी होती है, अलग अलग कैटेगरीज भी होती है, और जी आप आई थिंक अभी लेट्स फोकस ऑन डिस्कस बिकॉज दैट इज व्हाट जी सर। यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर। सो डिस्कस के लिए जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका कितना ट्रेनिंग फिजिकल होता है और कितना ट्रेनिंग मेंटल होता है? सर मोस्टली तो जो अपना जो रहता है वो माइंड से ही रहता है, कि अगर हम्म, हमारा माइंड फ्रेश है तो हमारी वेट ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है। अगर हम मेंटली अपना डिस्टर्ब हैं तो वेट ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी, ना ही हमारे थ्रोइंग सेशन अच्छे हो पाएंगे। तो उसके लिए हम फ्रेंड्स हैं हमारे साथ, तो फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ज्यादा हम्म, से ज्यादा ये रखते हैं कि अपने माइंड को फ्री रखें, कोई टेंशन ना रखें। कि एक रहता है कि सर कभी कभार हमारा जैसे इंजरी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई, अपना बैक में प्रॉब्लम हो गई, तो उससे माइंड थोड़ा सा खराब हो जाता है। कि जो हम वेट उठाना चाहते हैं, जैसे बेंच प्रेस हो गई, तो वो बेंच अच्छे तरीके से, जो हमने हमारा पर्सनल बेस्ट है, पर्सनल हम्म, बेस्ट से एकदम नीचे आ जाता है, तो वो उसमें थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि अब पता नहीं जो इंजरी है कितने टाइम में ठीक होगी, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, कैसे हम्म, होएगा, मतलब कभी हमारा कोई जो अपकमिंग इवेंट है वो हमारा मिस ना हो जाए, या कुछ खराबी ना, गड़बड़ ना हो जाए इन चीजों में। हम्म। और ये सब करते हुए आप हम लोगों ने सुना है कि और मैं खुद इन्वॉल्व भी हूँ बहुत अलग चीजों पे, तो मेरे को मालूम है कि साई बहुत हेल्प करता है जो एथलीट्स है। सो आपको क्या लगता है कि ये शिफ्ट कैसे हुआ, जहाँ पे पैराला ओलंपिक और इंडियन स्पोर्ट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस आ गया, और साई इतना एक्टिव हो गया, तो उसका फायदा कैसे हुआ आपको? सर जो हमारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक्टिव है, काफी अच्छे हैं। जो अपने जो बड़े बड़े हैं, हमारे जो सीनियर हैं, वो काफी सपोर्ट करते हैं। अगर हम उनसे किसी चीज की रिक्वायरमेंट देते हैं तो वो हमें रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, खाना, ये सारी चीज। अगर हमें जिस चीज में कुछ किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे हम्म, डिस्कस करते हैं, तो वो तुरंत उस चीज को अपना विद इन मतलब वन डे 2 डे में अपना उस चीज को ओके कर देते हैं। और जो सर ये जो एक्टिव अब जो हो रहे हैं लोग, वो हमारे 2016 जो ओलंपिक हुए थे करेक्ट। उसकी वजह से हुए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्राउन्ज मेडल था।
और जो एबल कैटेगरी में ओनली 2 ही मेडल थे, एक तो सिल्वर एंड एक ब्राउन। तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि पैरा के ऊपर इस वक्त ज्यादा फोकस है। और उसके दो फायदे भी है, मतलब एक तो एक अलग अलग मिसाल तैयार होती कायम होती है लोगों के सामने कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरा एबल बॉडी को दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। जी जी। एंड जब आपके जैसे लोग हैं जो इतना मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते, इट्स लाइक दैट, जैसे आप बोलते हैं कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, लेकिन इसके आगे मेरी जिंदगी जो है उसको मैं बहुत स्पेशल बनाऊंगा। और वो जो है इंस्पिरेशन, आई थिंक वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। सो नीरज, मेरा एक आखिरी सवाल है, ऐसा कौन सा एडवाइस मिला आपके लाइफ में जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? सर उसके लिए तो मैं अपनी वाइफ को ही क्रेडिट दूंगा, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती तो क्या पता मैं यहाँ तक ना पहुंचता। वाह। और सर दोनों। और मेरे लिए सबसे, अगर देखा जाएगा कि आप बोलोगे कि बटरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से और जो जिस तरीके से वो निकले हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी की अब अगर आप जर्नी देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत सफर करा है। तो उस सफर करने के बावजूद जब जो उनका पहला अपना उनकी एक प्राइज मनी थी जो दिखाया गया है, और जो था कि उन्होंने वो प्राइज मनी एक गरीब को दी थी अपने तरफ से, तो उनसे उनसे बड़ा तो कोई मेरे हिसाब से कोई प्लेयर है नहीं, ना ही कोई इंसान होगा कि वो जो अपनी पहली इनकम है वो किसी को दान दे दे। नहीं, महेंद्र सिंह धोनी तो अलग अलग लेवल की मिसाल है सबके लिए। एंड ही इज डिफरेंट इंस्पिरेशनल पर्सन एट एनी गिवन टाइम। और मेरा भाग्य है कि मैं उनके साथ बहुत करीबी काम करता हूँ। नहीं सर, उनसे एक चीज सीखने को मिली है कि चाहे कितनी भी बड़ी कैसी भी सिचुएशन हो, थोड़ा सा कूल डाउन रहो, शांत रहो। उस शांत रहने के बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। वेरी गुड। आई थिंक बहुत बहुत सही है। आई थिंक ये एडवाइस जो आप बोले कि इससे लाइफ चेंज हुई, फर्स्ट ने आपने आपने कभी बटरिंग नहीं की, लेकिन वाइफ के साथ ब्राउनी पॉइंट तो पक्का जमा की है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरी वाइफ है। बट नीरज, ऐसा कौन सा आप इतना अचीव कर रहे हैं और आप बहुत बहुत अचीव करोगे, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं उसके लिए। लेकिन एक क्वेश्चन पूछना था कि ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहोगे? एबल्ड हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, कोई भी बच्चा हो, तो आप क्या एडवाइस है जो पास ऑन करना चाहोगे? सर मैं सिर्फ एक ही छोटी सी बात बोलूंगा, जो हमारे बिगनर्स प्लेयर हैं जो कि अब आने वाले हैं, बस वो अपने आप को इतना प्रिपेयर रखें कि गलत नेगेटिविटी में ना जाके हमेशा पॉजिटिविटी में रहें। अगर वो अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो वो कभी भी डाउन नहीं जाएंगे और अप ही जाएंगे। और अगर वो बड़े प्लेयर बन जाते हैं, लाइफ में अच्छा करें, लेकिन वो डाउन टू अर्थ रहें, तो वो बहुत ही आगे तक जाएंगे। वेरी गुड। आई थिंक जो बोलते हैं ना कि हमेशा कोशिश करते रहो और बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे। आई थिंक आप उसकी एक जीती जागती मिसाल हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज लास्ट 20-25 मिनट जो बात कर रहे हैं, एक चीज तो बहुत कांस्टेंट है, एक तो पीछे का तिरंगा और आपके चेहरे पे स्माइल। आई थिंक थैंक यू सर। ये दोनों चीजें कायम रखना। एंड बहुत शुभकामनाएं फॉर ओलंपिक्स एंड एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे। And wish you all the best. Take care and stay safe. थैंक यू सर। Thank you for watching. Thank you for liking and thank you for sharing. But please do subscribe on our channel Sportsy Says and help us spread the word about Sportsy. We go with the same handle Sportsy Says across all the social media platforms.